Hello students, I hope you are fine. Dear students, we have started the concept domain and now today we will discuss about domain and range also. Do you know what is domain? A domain is input. Domain is input and range is output. Range is output. When we will find domain and range for any real number, we should keep in mind about real. आपको ध्यान रखना है जब भी आप डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे तो आपको माइंड में रखना है अबाउट रियल कॉन्सेप्ट, रियल नंबर के रिगार्डिंग. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद एग्जांपल. If fx is a square minus x square, find its domain. आपको इसका डोमेन निकालना है. We need to find its domain. So dear student, हमने डिस्कस किया था अगर रूट में कोई वैल्यूज है और वो न्यूमरेटर में है तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आप क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मेक इट्स फैक्टर ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ यू नो टू नंबर का प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर कब है? P1 एंड P2. आप देखिए P1 एंड P2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस बोथ आर पॉजिटिव आइदर बोथ आर नेगेटिव. तो इसमें केसेस बनाएंगे. P1 is greater than equal to 0, P2 is greater than equal to 0 means a minus x is greater than equal to 0, a plus x is greater than equal to 0. a को आप इनइक्वालिटीज है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड. माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा. यहां भी सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए. और यहाँ कंपल्सरी है P1 एंड P2 both should be greater than 0 तो एंड यूज करेंगे. क्लियर? तो इट मींस कंबाइंड रिजल्ट इज x is greater than equal to minus a less than equal to a. Clear? If you are taking both negative, P1 is less than equal to 0, P2 is also less than equal to 0. Because negative is also positive. So a minus x is less than equal to 0 and a plus x is also less than equal to 0. यहाँ देखिए अगर मैं a सब्ट्रैक्ट करता हूँ both sides तो minus x is less than minus a and you know माइनस से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो x इज ग्रेटर देन ए एंड a प्लस एक्स इज लेस देन 0, a प्लस एक्स माइनस ए सो x इज लेस देन माइनस ए. यहाँ n लिखा हुआ है मैंने तो और x क्या है? x is greater than equal to a but less than equal to minus a. x is greater than equal to a, x is less than equal to minus a. तो क्या सेटिस्फाई करेंगी ऐसी वैल्यूज? when x is greater than equal to a and दोनों, तो ऐसा x लेना है आपको which is less than equal to minus a and greater than equal to a.
and you know when x is greater than equal to a minus less a will not satisfy here, so we will take x is greater than equal to minus a less than equal to a, तो ये हमारा क्या आ गया, डोमेन. It is the domain of the function a square minus x square. Now let us see next example. Now our example is fx is equal to 1 upon under the root x plus modulus x. So dear student, you know modulus x have two results, negative x, positive x. तो नेगेटिव कब होगा, when x is less than 0 and positive when x is greater than equal to 0. But we need x plus modulus x. तो मैं इसमें x ऐड करूंगा तो यहाँ भी x ऐड कर लेते हैं. So x plus modulus x have two result, 0 and 2x. Okay, 0 and 2x. You know when x is less than 0, answer is 0. When x is greater than equal to 0, it is 2x. It is 2x. But in case of 0, 1 by 0 क्या हो गया, not defined. Because हमने डिस्कस किया था अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 0 बनेगा तो ये तो नॉट डिफाइंड के केस में जाएगा, तो ये डोमेन नहीं हो सकता. So in case of when x is greater than equal to 0, positive 2x. Okay, because our function in the root x plus modulus x. So ये कंडीशन जो है ये हमारा क्या होना चाहिए, अगर ये न्यूमरेटर में है then it should be greater than equal to 0. बट अगर ये डिनोमिनेटर में है then इस कंडीशन में x plus modulus x should be only greater than 0. Clear? Only greater than 0. So on the behalf of this result we will select only this part. हमारी जो प्रॉब्लम है वो डिनोमिनेटर में है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम इसमें से कौन सा सिलेक्ट करें, ये लें या ये लें. अगर आप ये ले लेंगे तो इसमें इक्वल टू 0 लिखा गया है. क्लियर? x प्लस मॉडुलस अगर इक्वल टू 0 होगा तो नॉट डिफाइंड बनेगा. सो हम कौन सा केस चूज करेंगे, x प्लस मॉडुलस x शुड बी ग्रेटर देन 0. तो इसके बिहाफ पे आप इसका डोमेन बताएंगे. इज ग्रेटर देन 0 मींस 0 टू इंफिनिटी. क्या हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी. ओके, तो इस डोमेन इज 0 टू इंफिनिटी. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज fx is equal to 1 upon under the root x minus modulus x. So dear student, you know modulus x have two result, negative x and positive x. Okay, but आप देख रहे हैं x minus modulus x. अगर हम बाहर माइनस लें तो ये माइनस, ये माइनस, सो माइनस मॉडुलस x इज x और ये नेगेटिव x. अब आपको x ऐड करना है तो x प्लस x, सो वी गेट x माइनस मॉडुलस x इज 2x 0. क्लियर? यहाँ आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है इसके अंदर. देखिए, एक तो हमारा फंक्शन स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट मीन और पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए. सेकंड वो डिनोमिनेटर में है तो 0 भी नहीं होना चाहिए. क्लियर? बट आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो सभी जगह आपका एक ही आंसर होगा 0. अगर आप x का कोई भी वैल्यू 0 टू इंफिनिटी लेते हैं, 0 टू इंफिनिटी, तो सभी के अंदर एक ही आंसर आता है 0. अगर हम अंडर रूट में यहाँ 0 पुट करेंगे तो इंफिनिटी बनेगा. सो हम ये तो ले ही नहीं सकते, तो यहाँ आप नहीं ले सकते इसको. क्लियर? तो डोमेन इधर तो नहीं बनता. अब यहाँ चेक करेंगे,
when x is less than 0, when x is less than 0 तो हमारा फंक्शन क्या हो गया 2x। अगर आप अंडर रूट में 2x लेते हैं बट आपको अब x का वैल्यू 0 से लेस पुट करना है, 0 से लेस मीन नेगेटिव। अगर मैं कोई भी x नेगेटिव लूंगा, सपोज मैंने -1 लिया तो -2 आ गया, तो रियल तो नहीं आया ये तो नॉट रियल। तो इसका डोमेन क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट, सेटिस्फाई नहीं करता। क्योंकि अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 लेते हैं तो इन्फिनिटी फंक्शन बनता है, लेस देन 0 लेते हैं तो नेगेटिव बनता है। सो डोमेन क्या हुआ इधर, नो डोमेन। नो का मतलब फाई लिखना है मैथमेटिक्स में। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट, यू कैन राइट हियर फाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ अनदर एग्जांपल, y is equal to x square minus 1 upon x minus 1 where x is not equal to 1. Find its domain and range. Find its domain and range. So dear student, डोमेन में आप देखिए, डोमेन के लिए आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट उसको ऑब्जर्व करना फंक्शन क्या है। तो यू नो अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 और डिनोमिनेटर में 0 मीन्स क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड। ओके, सो आप डोमेन में क्या लिखेंगे, ऑल रियल बट नॉट 1, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ भी है x इज नॉट इक्वल टू 1। सो डोमेन में आप सभी रियल पुट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, कोई नेगेटिव का प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर में बस ध्यान रखना था आपको 0 नहीं बनना चाहिए, सो उसके लिए हमने 1 डिसाइड नहीं किया, x इज नॉट इक्वल टू 1। रेंज, रेंज के लिए क्या करना है बेटे, आपको किसी फंक्शन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में देखा, x - 1 x + 1, सो y इज इक्वल टू अपने पास x + 1 आ गया। व्हेन यू विल फाइंड रेंज तो आप उसको ही क्या कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, रिफाइंड कर सकते हैं। हमने इसको रिफाइन किया, अब इसका रेंज क्या पॉसिबल है। देखिए रेंज के लिए आप देखेंगे हम x को क्या नहीं पुट कर रहे, 1। अगर 1 पुट कर दें तो 1 + 1 क्या आंसर आएगा, 2। बट हम 1 पुट नहीं कर रहे तो 2 भी नहीं आएगा। तो आपका डोमेन रियल है तो रेंज भी क्या होगा, ऑल रियल आ सकते हैं बट 2 नहीं आ सकता। इन रेंज ऑल रियल विल सेटिस्फाई बट नॉट 2, बिकॉज 2 कब आएगा, व्हेन वी विल पुट x एज 1, बट हम x को 1 पुट ही नहीं कर रहे बिकॉज 1 सेटिस्फाई नहीं करता। ओके, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, रेंज, कैसे आपको रेंज निकालना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ वी हैव 2 एग्जांपल। और फर्स्ट इज y is equal to √x when x is greater than equal to 0 and y is equal to x³। Find domain and range in both the question. Dear student, यहाँ देखिए आपको इंडिकेशन गिवन है, x is greater than equal to 0, so domain is 0 to infinity, all positive value with 0 also. Clear? So domain is 0 to infinity and you know अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 0। 1 पुट करेंगे 1, 2 पुट करेंगे √2, तो हमारे आंसर भी इसी फॉर्म में आएंगे। तो रेंज इज ऑल्सो 0 to infinity। क्लियर। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन आप ऑब्जर्व करेंगे, क्या यहाँ स्क्वायर रूट है, नो। क्या डिनोमिनेटर है, नो। तो वी कैन पुट एवरी रियल नंबर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डोमेन इज रियल। रेंज बताइए आप। रेंज में आपको पता है आप नेगेटिव पुट करेंगे नेगेटिव आंसर, पॉजिटिव पुट करेंगे पॉजिटिव आंसर, 0 पुट करेंगे 0, सो वी आर गेटिंग ऑल रियल। तो रेंज इज रियल, डोमेन इज आल्सो रियल। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, नाउ प्रॉब्लम इज y is equal to under the root 9 - x²।
find its domain and range. तो you know for domain यहाँ रूट का प्रॉब्लम है, तो you know अगर अंडर रूट के अंदर है तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज नेगेटिव होगा तो नॉट रियल रहेगा. सो इस केसेस में आवर क्वेश्चन में 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0. And you know x square minus 9 written as x minus 3x plus 3. X minus 3x plus 3 is less than equal to 0. It means one is positive, another is negative. So if x minus 3 is less than equal to 0, then x plus 3 is greater than 0. X is less than 3, x is greater than minus 3. Means x is greater than equal to minus 3 less than 3. हाँ ये भी हो सकता है, x minus 3 is greater than equal to 0, x plus 3 is less than equal to 0. Means x is greater than equal to 3, x is less than minus 3. But ये satisfy नहीं करेगा. आपको x की वो वैल्यू पुट करनी है जो minus 3 से less हो, but 3 से क्या हो, greater. सो हमारे पास ओनली वन चॉइस. तो डोमेन क्या आ गया अपना, -3 to 3. क्लियर? डोमेन इज -3 to 3. नाउ व्हाट इज रेंज? रेंज निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी है हमारे पास. हाउ विल यू फाइंड रेंज? रेंज के लिए जो भी गिवन फंक्शन है आपको y के इक्वल, तो वहां से आप x का वैल्यू निकालिए. फाइंड x. तो ऑन स्क्वेयरिंग y स्क्वेयर, x स्क्वेयर इज पॉजिटिव 9 माइनस y स्क्वेयर एंड x इज प्लस माइनस 9 माइनस y स्क्वेयर. वी हैव वैल्यू ऑफ x इज प्लस माइनस 9 माइनस y स्क्वेयर. क्लियर? But for positive real we can take only positive 9 minus y square, not negative. अब इसका कंसेप्ट देखिए, रेंज के लिए क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए. यू नो स्क्वायर रूट के अंदर तो क्या होगा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 0. फैक्टर बनाएंगे y माइनस 3, y प्लस 3 इज लेस देन 0. सेम वही होगा ना. तो हमारे पास y का वैल्यूज क्या आएगा, माइनस ग्रेटर देन -3 लेस देन 3. मीन्स y इज 1 2 3 -1 -2 -3. यहां से लेकर यहां तक आपका y आ रहा है. ओके, बट यहां देखिए आप y का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, बिकॉज रियल है. एंड यू नो व्हाट इज रियल, विच स्क्वायर इज पॉजिटिव. सो y हमें क्या आएगा, पॉजिटिव. तो आप ओनली पॉजिटिव केसेस लेंगे, ये नेगलेक्ट कर देंगे. एंड वी विल टेक 0 to 3. ओके, सो आवर रेंज इज 0 to 3 एंड डोमेन इज -3 to 3. एक और केस भी है यहाँ पर, आप ऑब्जर्वेशन का देखिए. वी हैव -3 to 3 डोमेन. देखिए मैं -3 पुट करूंगा, -3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0. 3 पुट करूंगा, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0. इट मीन्स अगर आप 0 से 3 तक का वैल्यू लेते हैं तो वही रिजल्ट आएगा जो इनके केसेस में आ रहा है. क्लियर? So our range is 0 to 3. Now next problem. Now we have function is modulus x minus 1 upon x minus 1 and we need to find its domain and range. You know dear student, हम यहाँ 1 नहीं पुट कर सकते, because 1 पुट करेंगे तो 1 minus 1 0 infinity बनेगा. Okay,
So our domain is all real except one. All real except one. Clear? And range is, अब रेंज के लिए आप देखिए इसको सोल्व कर सकते हैं कैसे, या मॉडुलस फंक्शन है, देखिए मॉडुलस x माइनस 1. ओके, एंड यू नो मॉडुलस हैव टू रिजल्ट, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है. क्लियर? बट हमारे पास है मॉडुलस x माइनस 1 बाय x माइनस 1, ये कैंसिल होंगे, रिजल्ट +1 -1. क्लियर? तो आवर रेंज इज -1 एंड +1. तो आवर रेंज इज ओनली -1 एंड 1. ओनली 2 वैल्यू है, इंटरवल नहीं आएगा, करली ब्रैकेट यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम. नाउ क्वेश्चन इज fx is equal to 1 minus modulus x minus 2. Find its domain and range. You know यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो we are free for every real. So domain is real. So domain is real. अब रेंज देखिए क्या क्या आ सकती है. डियर स्टूडेंट, आपको पता है मॉडुलस x माइनस 2 मॉडुलस में है, तो इसका रिजल्ट ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा. पॉजिटिव आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 minus 2 0, अदरवाइज ऑल नेगेटिव इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव. क्लियर? नाउ अब यहाँ देखिए माइनस है, तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ इनइक्वालिटीज में, तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज. चैप्टर 6 में किया है हमने, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज व्हेन वी विल मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव. नाउ 1 आपको ऐड करना है बोथ साइड, सो वी गेट, इसका जो रिजल्ट है वो लेस देन इक्वल टू क्या है? 1. सो रेंज इज 1 से लेस कहाँ तक जाएंगे? -∞ तक, और क्लोज्ड इंटरवल. ओके, सो इट्स डोमेन इज रियल एंड रेंज इज 1 to -∞. Now next problem is, now we have one another question about draw the graph of the following function, and first is f is real to real, domain is real, range is real, and function is modulus x minus 2. तो आपको इसको ब्रेक करना होगा. यू नो मॉडुलस x माइनस 2 नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होगा. ये कौन डिसाइड करता है? देखिए ये वैल्यूज डिसाइड करेंगी. x माइनस 2 को मैंने 0 पुट किया, x इज 2, तो when x is less than 2 it will be negative and greater than equal to it is positive. ओके, तब आपको ग्राफ बनाना है, आप टेबल बनाएंगे. ग्राफ के लिए आप टेबल बनाते हैं. x, अब देखिए कुछ वैल्यू ले लीजिए जो लेस देन 2 है, जैसे -1 -2 एंड 1 0. ओके, एंड कुछ ले लीजिए जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मींस 2 3 4 5 6. तो व्हेन x इज लेस देन 2 तो आपको वैल्यू इसमें पुट करना है, -1 यहाँ पुट करेंगे, -1 -2 -3 माइनस प्लस, -2 -2 -4 +4, 1 -2 -1 plus -1 0 पुट करेंगे, देन 2. नाउ 2 पुट करना, 2 - 2 यहाँ आएगा, इक्वल है ना, इक्वल इज 2, 2 - 2 0. 3 यहाँ पुट करेंगे, 3 - 2 1, 4 - 2 2, 5 - 2 3, 6 - 2 4. ओके, अब आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए. -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. देखिए -1 3,
-2 4 1 1 2 0, ये आ जाएगा। नाउ 3 1 4 2 5 3 6 4, ये ओके। सो ऐसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। सेम इन सेकंड पार्ट, जब आप ग्राफिकल वैल्यूज लेंगे, सपोज मैं टेबल में ले रहा हूं, सम वैल्यूज आर हियर 1 -1 -2 0 1 2 3। -1 देखिए, -1 इज लेस देन फ्रॉम x, -1 1 से लेस है, तो यहां पुट करेंगे -2 -2 also -4 0 1 1 इक्वल टू 1 है आपका 1, 2 1 से ग्रेटर है तो यहाँ पुट करेंगे 3 -2 1 3 -3 0। नाउ यू कैन ड्रॉ, कार्टेशियन प्लेन में आप एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, today we have discussed about domain and range and representation of the graph. Okay, so you will try some problem based on domain, range and graphical representation. Stay home, stay safe. Thank you.